students. This is chapter number 1, lecture number 7. In this lecture, we will deal with relationship between mole, Avogadro number, number of molecules, and number of atoms. Mainly, we will focus on number of atoms. Okay, it is very much connected with the number of molecules. Okay, so ये लेक्चर पूरा कनेक्टेड है लेक्चर नंबर 6 के साथ. अगर आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट पहले आप वो लेक्चर देख ले, फिर बाद में ये लेक्चर को फिर से आप क्या करो, रिज्यूम करो. So student, as we studied in the last lecture and we find out the relationship between the mole and number of molecules. Today we will discuss about the relationship between the atoms, molecules and mole. So start with very easy example, and example is water. If you take one molecule of water, so one molecule of water means it contains two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Total 3 atoms are present. So as we know, single molecule of water contains 2 hydrogen atoms and one oxygen atoms. Total 3 number of atoms present in that single molecule of water. So now मोल को पिक्चर में लाते हैं कि 1 mole of water means 18 gram of water. 1 mole means 1 into Avogadro molecules of water. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आप किसी भी कंपाउंड का 1 मोल ले रहे हो मींस उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, फिक्स है, विच इज 6.022 into 10⁻23, जिसको हम शॉर्ट वे में बाय Na क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. So 1 mole of water contain 1 Avogadro molecule of water. यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. अब आगे बढ़ते हैं. Single molecule contain 2 hydrogen and 1 oxygen. So Avogadro molecule contain same 2 into Avogadro atoms of hydrogen and 1 into Avogadro atoms of oxygen. Total 3 into Avogadro atoms. तो ये चीज क्या है, सही है. दुनिया में आप कहीं पर भी जाओ तो ये चीज कभी भी चेंज होने वाली नहीं है कि भाई 1 मोल ऑफ वाटर के पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है. 18 ग्राम ऑफ वाटर के पास 1 एवोगेड्रो मोलेक्यूल्स ऑफ वाटर है and 1 एवोगेड्रो मोलेक्यूल ऑफ वाटर के पास 2 into एवोगेड्रो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन and 1 Avogadro atoms of oxygen and total 3 into Avogadro atoms क्या है, present है. If we take the another example, we will take the example of H2SO4. A single molecule of H2SO4, it contains 2 atoms of hydrogen, 1 single atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. टोटल नंबर आप चेक करो तो 4 plus 1 plus 2 टोटल 7 atoms present हैं. So single molecule of H2SO4 consists of 7 atoms. Now मोल को पिक्चर में लाते हैं तो क्या होगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 mole of H2SO4 means 98 gram and 1 mole contain
1 into Avogadro molecules of H2SO4। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। 1 मोल कंटेन ऑलवेज 1 into Avogadro molecule of H2SO4। अगर सिंगल मॉलिक्यूल में टोटल 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो एवोगेड्रो मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, इस तरह से होगा। इसको क्या करो आप, एवोगेड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, एवोगेड्रो से। तो यहां पर भी क्या करो, एवोगेड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 एवोगेड्रो मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट H2SO4 contain 2 into Avogadro atoms of hydrogen, 1 into Avogadro atoms of sulfur and 4 into Avogadro atoms of oxygen। आप टोटल करोगे तो अगेन 7 into Avogadro atoms क्या हो गए टोटल। तो ये भी चीज क्या है, ऑलवेज फिक्स ही है, यहाँ पर कभी भी चेंज होगा नहीं। अगर आप 1 मोल ऑफ क्या ले रहे हो, H2SO4 ले रहे हो, it contain 98 gram of H2SO4, also contain 1 Avogadro molecule of H2SO4 and it also contain this much quantity, total 7 into Avogadro atoms, okay, which include 2 into Avogadro atoms of hydrogen, 1 into Avogadro atoms of oxygen and 4 into Avogadro atoms of ऑक्सीजन। यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, तो सेम वे हम एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेंगे ताकि हमारा माइंड है वो क्लियरली एक्सेप्ट कर सके कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल, मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो एंड एटम्स। First we take the example of glucose. Okay, so 1 molecule of glucose C6H12O6, as you clearly see that it contains 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of ऑक्सीजन। टोटल समेशन करोगे तो टोटल समेशन आपको मिलेगा 24 एटम्स। सो क्लियरली आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि वन सिंगल मोलेक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 24 टोटल एटम्स। ओके, सो नाउ मोल को पिक्चर में लाते हैं। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 means 180 gram and 1 mole consists of Avogadro molecules of C6H12O6। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 1 mole always contain 1 Avogadro molecule of that compound। Now सिंगल मोलेक्यूल के पास इस तरह से क्या है, 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एवोगैड्रो, मतलब ह्यूज क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 6 इंटू एवोगैड्रो एटम्स कार्बन, 12 इंटू Avogadro atoms of hydrogen, 6 into Avogadro atoms of oxygen। तो टोटल कितने हो गए, 24 into Avogadro atoms
टोटल क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। तो जस्ट आपको क्या करना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। यहां तक तो हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स में से एटम में जाने के लिए आपको फॉर्मूला देखनी है और एटम्स कैलकुलेट करने हैं। 6 12 6 24। सो 24 को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आगे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं और न्यूमेरिकल से क्या करेंगे, ये कंसेप्ट को समझने की ट्राई करेंगे, जिससे हमें क्या हो, आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलो देखते हैं न्यूमेरिकल्स। हेलो फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। एटम्स और एवोगैड्रो का रिलेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। यहाँ पर जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 6 में कर चुके हैं। मतलब लेक्चर नंबर 6 में हमने जो भी आईआईटी और नीट पीएमडी के क्वेश्चन किए थे उसको ही रिपीट कर रहे हैं, जस्ट एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं। और वो चेंज क्या है कि वो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे। बट यहाँ पर हम मॉलिक्यूल वर्ड को हटा देंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे एटम्स, मतलब which has maximum number of atoms। मतलब वही क्वेश्चन को हम एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, चेक करेंगे, ताकि हमें काफी डीपर वे से और काफी क्लियर कट वे से पता चले कि मॉलिक्यूल के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो किस तरह से सोल्व करना है और एटम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो किस तरह से सोल्व करना है। ओके, सो ऑप्शन सही नहीं है यहां पर। सॉल्यूशन भी क्या है, सेम है, अप टू मॉलिक्यूल्स। हमें सिर्फ क्या करना है, एक और स्टेप क्या करना है, ऐड करना है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एटम्स। ओके, तो यहां पर आप क्लियर वे में देख सकते हो 36 ग्राम ऑफ H2O, मतलब 1 mole contain 18 gram, 1 mole contain 1 Avogadro, but we have to take 36 gram. 36 gram means 2 mole of water, and 2 mole of water contain 2 into Avogadro molecules of water। तो एक्चुअली आप देखो तो मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर आ रहा है, बट इसको हम एटम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो क्या होगा, तो देखते हैं कि 1 सिंगल molecule of water contain 3 atoms, 2 hydrogen and 1 oxygen। तो जो भी आंसर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सिंपल वे में H2O एक मोलेक्यूल है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम्स है। तो सिंगल मोलेक्यूल ऑफ वाटर में 3 एटम्स हो गए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूल में से अगर आपको क्या करना है, एटम में कन्वर्ट करना है, तो वाटर के लिए इनटू क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो यहां पर भी सेम वे, आपको अगर मॉलिक्यूल्स में से कहां पर जाना है, एटम में जाना है, तो इनटू 3 करना पड़ेगा। 3 किसके लिए, 2 फॉर हाइड्रोजन एंड 1 फॉर ऑक्सीजन। तो आपका अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3, 2 तो ऑलरेडी है, 2 इंटू एवोगैड्रो एटम्स, तो 3 इंटू 2 6 इंटू एवोगैड्रो एटम्स प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, तो 36 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल 6 इंटू एवोगैड्रो एटम्स क्या है, प्रेजेंट है। तो फर्स्ट का आंसर होगा 6 इंटू एवोगैड्रो अकॉर्डिंग टू और इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एटम्स। समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इट कंटेन 28 ग्राम, और 1 मोल मींस 1 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एटम के फॉर्म में। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप देखो एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है। सो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 एटम है, 1 कार्बन एंड सेकेंड ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है मॉलिक्यूल में, उसको अगर आपको एटम में कन्वर्ट करना है तो 2 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या होगा, 2 इंटू एवोगैड्रो एटम्स। तो सिंपल वन, एक स्टेप ही आपको आगे बढ़ना है, फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा कि कितने एटम्स प्रेजेंट है। सो इसका आंसर होगा 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। थर्ड चेक करते हैं कि 1 मोल ऑफ इथेनॉल, 1 मोल ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। 1 मोल कंटेन 1 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। अब इथेनॉल की फॉर्मूला आप चेक करो तो एक्चुअली क्या है, C2, हाइड्रोजन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन कितने हैं 1, सही है। सो 1 सिंगल मॉलिक्यूल कंटेन 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो टोटल करो तो 2 + 6 + 1, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1, तो टोटल कितने हो गए एटम्स, 9 एटम्स हो गए। तो जो भी आंसर आपका मिल रहा है यहां पर, उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल कंटेन 9 एटम्स, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन and 1 oxygen. So last answer will be 9 into Avogadro atoms. So C में आंसर क्या होगा, 9 into Avogadro. And last option, 1 mole of N2O5. So 1 mole of N2O5 चेक करोगे तो 108 होगा, तो 1 मोल में 1 एवोगैड्रो, बट वी हैव 54 ग्राम। सो 54 ग्राम कंटेन 0.5 मोल ऑफ N2O5 एंड 0.5 मोल ऑफ N2O5 कंटेन 0.5 into एवोगैड्रो मॉलिक्यूल ऑफ N2O5, बट वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ एटम्स। तो आप देखो N2O5, 1 सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 कंटेन 2 नाइट्रोजन एंड 5 ऑक्सीजन, टोटल 7 एटम्स। तो जो भी आंसर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो होगा ये 7 into 0.5, 7 into 0.5 करोगे तो 3.5, कैसे आया 7 into 0.5, सो टोटल आंसर होगा 3.5 into एवोगैड्रो एटम्स। कहां पर प्रेजेंट है, तो 54 ग्राम ऑफ N2O5 में है। तो फोर्थ आंसर मिल रहा है आपको 3.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो हर एक ऑप्शन में चेक करो, यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, यहां पर 9 है और यहां पर 3.5 है। तो उस हिसाब से देखो तो सबसे ज्यादा एटम्स कहां पर मिल रहे हैं आपको, तो सबसे ज्यादा एटम्स आपको कहां पर मिल रहे हैं, सी ऑप्शन में। सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू एटम्स क्या होगा, 9 into एवोगैड्रो, मतलब सी ऑप्शन 46 ग्राम ऑफ C2H5OH। अगर आपने मॉलिक्यूल के हिसाब से देखा होगा तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि यहां पर आंसर आ रहा था मॉलिक्यूल के हिसाब से, ए ऑप्शन आ रहा था, 2 मोल ऑफ H2O, मतलब 2 into एवोगैड्रो मिल रहा था। बट एटम के हिसाब से यहां पर आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। कई बार एटम और मॉलिक्यूल्स एक ही ऑप्शन में, मतलब सेम ऑप्शन में भी हो सकते हैं, या फिर इस तरह से दोनों का क्या हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं। समझ में आया, द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, द कैलकुलेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो अभी भी 2 क्वेश्चन बाकी है, वो हम आगे अभी करेंगे। चलो देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, same as previous lecture, which has maximum number of molecule word को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे यहाँ पर, और हम कौन सा वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, atoms. So which has maximum number of atoms. तो एटम्स की कैलकुलेशन करने के लिए आपको मॉलिक्यूल तक तो जाना ही पड़ेगा। तो यहां तक का एक्सप्लेनेशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब यहां से कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर दी एटम्स। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन वी टेक द 44 ग्राम ऑफ CO2। सो 1 मोल ऑफ CO2 मींस 44 ग्राम।
So 1 mole contain 1 into Avogadro molecule of CO2. As you see that CO2, 1 molecule of CO2 contain one single atom of carbon and 2 atoms of oxygen. Total 3 atoms, 1 carbon and 2 oxygen. So for the calculation of atoms we have to multiply by 3. 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने? क्योंकि CO2 contain 3 atoms, 1 carbon and 2 oxygen. So answer will be 3 into Avogadro. 3 into 1 into Avogadro. So answer will 3 into Avogadro atoms. Total number of atoms present in 44 gram of CO2 is 3 into Avogadro atoms. So atoms के point of view से देखो तो फर्स्ट में आंसर आ रहा है 3 into Avogadro. Now next 48 gram of O3. 1 mole of O3 means 48 gram. 1 mole contain 1 Avogadro molecule of O3. Very simple. As you see that O3 molecule contain 3 atoms of oxygen. So we have to multiply by 3. So 3 into 1 into Avogadro. So again answer is 3 into Avogadro atoms. So second का आंसर क्या होगा? 3 into Avogadro. Third option, 8 gram of H2 is given. 1 mole contain 2 grams, so 8 gram contain 4 mole. 1 mole contain 1 Avogadro molecule of H2, then 4 mole contain 4 Avogadro or 4 Avogadro molecule of H2. H2 is a molecule, but if you convert into atoms, it contain 2 hydrogen atom. It contain 2. 1 H2 molecule contain 2 hydrogen atoms. So 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. So 2 into 4 into Avogadro. So 2 into 4 into Avogadro. So total answer is 8 into Avogadro atoms are present in 8 gram of H2. So third का आंसर क्या होगा? 8 into Avogadro. And last, SO2. 1 mole of SO2, 64 gram. 64 gram contain 1 mole. 1 mole contain 1 Avogadro molecule of SO2. As you see that SO2, 1 sulfur, 2 oxygen, total 3. So multiply by 3. So 3 into 1 into Avogadro. So 3 into Avogadro atoms. So fourth का आंसर होगा 3 into Avogadro. So यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व किया? एटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 3, 3, 8 and 3. Again, the maximum number of atom present is in hydrogen. तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें ऑप्शन सी है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी आ रहा था एंड ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर आ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स में भी आ रहा है. तो हर बार ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम ही ऑप्शन हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम हो. मतलब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल सेम है या नहीं है. इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था उसमें डिफर आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर. तो जब भी आप ये लेक्चर देखो उससे पहले प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 जरूर देखना. अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है, वो हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, which has maximum number of atoms. थर्ड क्वेश्चन है ये सीरीज का. ये भी क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, बट यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल वर्ड निकाल दिया और एटम वर्ड को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया. तो देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं. तो मॉलिक्यूल तक का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. आज सिर्फ एक स्टेप हम उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन है 7 ग्राम ऑफ N2.
सो उसका हमने डिस्कशन किया 1 मोल N2 मींस 28 ग्राम, 7 ग्राम कंटेन 0.25 मोल. 1 mole contain 1 Avogadro, then 0.25 contain 0.25 Avogadro molecules of N2. N2, अब सिंगल मोलेक्यूल ऑफ N2 है, उसके पास 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो ये आंसर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया देन आंसर कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल की जगह पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एटम्स में, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ N2 कंटेन 2 एटम्स. तो दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 कंटेन हाउ मेनी? सो 2 से मल्टीप्लाई करो. सो 2 into 0.25, सो 0.50 into एवोगेड्रो एटम्स क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए. सो एटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है 0.5 into एवोगेड्रो. सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं. 1 mole of H2 means 2 gram of H2 and 1 mole contain 1 Avogadro molecule of H2. H2 single molecule of H2 contain 2 hydrogen atom. मतलब कि H2 में कितने एटम्स है? 2 एटम्स है. तो ये आंसर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 into 1 into एवोगेड्रो, मतलब 2 into एवोगेड्रो एटम्स क्या हो गए? यहाँ पर प्रेजेंट हो गए. समझ में आ रहा है सबको? ओके. सो हियर आंसर विल बी 2 into एवोगेड्रो. थर्ड ऑप्शन 16 gram of NO2. So 46 contain 1 mole and 1 mole contain 1 Avogadro. Then 16 means approximately हमने कितना लिया था? 1/3 mole. So 1/3 mole means 1/3 into Avogadro molecules of NO2. अब single molecule of NO2 contain 1 nitrogen atom and 2 oxygen atom. 1 nitrogen, 2 oxygen, total 3 एटम्स. तो इस आंसर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 3 into 1/3 करो तो 3 3 कैंसल. सो आंसर क्या होगा? 1 into एवोगेड्रो एटम्स. सो 1 into एवोगेड्रो एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 gram of NO2. एंड लास्ट ऑप्शन 16 gram of O2. 16 gram of O2 means 0.5 mole of O2. Means 0.5 mole of molecules, 0.5 into Avogadro into molecules of O2 present. One single O2 molecules contain 2 oxygen atoms. तो ये आंसर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर दी एटम्स. सो 2 into 0.5. Answer is 1 into Avogadro atoms. So according to atoms, इसका आंसर क्या रहा है? 1 into Avogadro. Okay, so एटम के हिसाब से देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में प्रेजेंट है? ऑप्शन बी में 2 into Avogadro. तो यहां पर फिर से प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि मॉलिक्यूल पूछा है तो भी आंसर बी आ रहा था. यहाँ पर एटम पूछा है तो भी आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है. बट हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू चेक आउट ओके कि मॉलिक्यूल किस में ज्यादा है और एटम किस में ज्यादा है. अगर आपको पूछा जाए कि एटम्स फाइंड आउट करो तो एटम्स फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले सब में मॉलिक्यूल्स क्या करने पड़ेंगे? फाइंड आउट करने पड़ेंगे. और मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करने के बाद उससे एटम की जो भी नंबर है उससे क्या करना पड़ेगा? उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपका आंसर क्या होगा? डिसाइड होगा. तो आज के लेक्चर में इतना ही. ये लेक्चर में हमने पढ़ा कि मॉल और एटम का रिलेशनशिप क्या है. तो मॉल और एटम के रिलेशनशिप को समझने के लिए हमने हेल्प ली किसकी? मॉलिक्यूल की. तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल को पढ़ा, ये लेक्चर में हमने एटम्स को पढ़ा. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे. बट आज इतना ही. थैंक यू वेरी मच.